بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے فارماکوگنوسی کا ٹاپک کرومیٹوگرافی۔ کرومیٹوگرافی بیسیکلی کیمسٹری کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم کسی کمپاؤنڈ کے اندر مختلف جو مکسچر موجود ہوتے ہیں اس مکسچر کو الگ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ دیا ہے، اس کے اندر مختلف مکسچر موجود ہے۔ مکسچر کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا جو امیزہ ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ چیزیں جو مکس ہوئی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں مکسچر۔ تو کسی کمپاؤنڈ میں جو مکسچر موجود ہوتا ہے اس کو الگ کرنے کے لیے جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کرومیٹوگرافی۔ اور اس کا جو بیسک پرنسپل ہوتا ہے یہ بنیاد کرتا ہے پولیرٹی کے اوپر، یعنی اس کی پولیرٹی کی بنیاد پہ ہم کسی کمپاؤنڈ کے مکسچر کو الگ الگ کرتے ہیں جس پروسیس میں، اس پروسیس کو کہتے ہیں کرومیٹوگرافی۔ کرومیٹوگرافی بیسیکلی اگر ہم کروم کی بات کریں تو یہ لفظ نکلا ہے کلر سے، یعنی اس میں مختلف جو مکسچر ہوتے ہیں ہم جب ان کی سپریشن کرتے ہیں تو ان کے ڈفرینٹ کلرز اپیئر ہوتے ہیں، تو ان کے کلرز کی بنیاد پہ جب ہم ان مولیکیولز کو الگ الگ، ان کے مکسچر کو الگ الگ کرتے ہیں تو یہ پروسیس کرومیٹوگرافی میں آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ایکسٹریکشن۔ ایکسٹریکشن کا جو بیسک پرنسپل تھا وہ تھا سولیبلٹی، کہ ہم سولیبلٹی کی بنیاد پہ جب مختلف کمپاؤنڈس کو الگ کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے ایکسٹریکشن۔ یہاں پہ جب ہم پولیرٹی کی بنیاد پہ مختلف کمپاؤنڈس کو، مختلف مکسچرز کو جب الگ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کرومیٹوگرافی۔ فار ایگزامپل کہ اگر میں 3 سے 4 کلر کی انک لے لوں، ریڈ کلر کی انک لے لوں، بلو کلر کی لے لوں، گرین کلر کی لے لوں اور ریڈ کلر کی لے لوں، اور ان انکس کو آپس میں مکس کر دوں، مکس کرنے کے بعد میں انہیں ان کی پولیرٹی کی بیس پہ کرومیٹوگرافی کے ذریعے سے الگ کروں تو ان کے ڈفرینٹ کلرز شو ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ایسا پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ کرومیٹوگرافی کہلاتا ہے۔ اب کرومیٹوگرافی کے اندر دو فیزز استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسٹیشنری فیز اور ایک ہوتی ہے موبائل فیز۔ اسٹیشنری فیز نام سے ظاہر ہے، اسٹیشنری یعنی ساکت، رکی ہوئی، اور موبائل کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا۔ تو اسٹیشنری فیز کرومیٹوگرافی کے اندر وہ فیز ہوتی ہے جو اموویبل ہوتی ہے، جو موو نہیں کر سکتی، جو حرکت نہیں کر سکتی، جیسے پیپر، ٹھیک ہے؟ جو ہم فلٹر پیپر استعمال کرتے ہیں کرومیٹوگرافی کے اندر وہ اموبائل ہوتا ہے، وہ موو نہیں کر سکتا، تو اسے ہم اسٹیشنری فیز کہتے ہیں۔ موبائل فیز کی بات کریں تو کرومیٹوگرافی کے اندر جو ہم لیکوڈ استعمال کرتے ہیں، جو سالوینٹ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں موبائل فیز، کیونکہ جو فلٹر پیپر ہے اس کے اوپر ہمیشہ سالوینٹ نے موو کرنا ہوتا ہے، سالوینٹ فلٹر پیپر کے اوپر موو کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں واٹر آ سکتا ہے، الکوہل، ایسیٹون وغیرہ، یا ان کا مکسچر بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹائل یا ٹیکنیکس آف کرومیٹوگرافی آتی ہے کہ کون کون سے اسٹائل سے ہم کرومیٹوگرافی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتی ہے اسینڈنگ کرومیٹوگرافی۔ اسینڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف، اور ڈسینڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے۔ تو اسینڈنگ کرومیٹوگرافی میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ سالوینٹ ہمیشہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے اور جو مکسچر ہوتا ہے وہ اسپورٹس کی فارم میں الگ ہوتا ہے، جبکہ ڈسینڈنگ کرومیٹوگرافی کی بات کریں تو سالوینٹ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف موو کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر یہ اینیمیشن دیکھی جائے تو ہم نے ایک فلٹر پیپر کو سالوینٹ کے اندر رکھ دیا ہے، تو یہاں پہ جو ڈفرینٹ کلرز ہیں یہ اوپر کی طرف موو کرے ہیں، تو یہ چونکہ سالوینٹ اوپر کی طرف موو کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو سیمپل ہے یہ اوپر کی طرف موو کر رہا ہے، تو اس طرح کی کرومیٹوگرافی کو کہتے ہیں اسینڈنگ کرومیٹوگرافی۔ اگر یہی کرومیٹوگرافی میں اوپر سے نیچے کی طرف یہ کلر اور یہ سالوینٹ موو کرتا تو اس طرح کی کرومیٹوگرافی کو ہم ڈسینڈنگ کرومیٹوگرافی کہتے ہیں۔ پھر آتی ہے سرکولر اینڈ ریڈیل کرومیٹوگرافی۔ سرکولر اینڈ ریڈیل کرومیٹوگرافی میں جو سالوینٹ ہوتا ہے سرکولر کرومیٹوگرافی میں سرکل کی فارم میں موو کرتا ہے، اور اس میں جو مکسچر ہوتا ہے وہ رنگ کی فارم میں الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آر ایف ویلیو کی بات کریں تو آر ایف ویلیو کا مطلب ہوتا ہے ریٹینشن فیکٹر۔ تو آر ایف ویلیو ہم موسٹلی کرومیٹوگرافی کے کیس میں لیتے ہیں جب ہم نے پریکٹیکل پرفارم کرنا ہو۔ تو پریکٹیکل ہم جب پرفارم کرتے ہیں بیسیکلی جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ہم ایک فلٹر پیپر لیتے ہیں، فلٹر پیپر کو اوپر ہم اپنا سیمپل لگا کے اور اسے سالوینٹ کے اندر ہینگ کر دیتے ہیں۔ سالوینٹ میں ہم اس طرح سے ہینگ کرتے ہیں کہ جس فلٹر پیپر کے جس پوائنٹ پہ ہم نے اپنا سیمپل لیا ہے وہ سالوینٹ کے اندر ڈپ نہ ہو، پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو جو سالوینٹ ہوتا ہے جو بیکر میں یا کرومیٹوگرافک ٹینک میں ہوتا ہے وہ سالوینٹ اوپر کی طرف موو کرنا سٹارٹ کرتا ہے۔ جب وہ سالوینٹ اوپر کی طرف موو کرتا ہے تو سبسٹانس بھی وہاں سے اوپر کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ کمپوننٹ جو ہوتے ہیں وہ الگ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی آر ایف ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے؟ اوپر ہم لیتے ہیں ڈسٹینس کورڈ بائی سبسٹانس، کے جو سبسٹانس ہے جو سیمپل ہم نے لیا ہے اس نے کتنا ڈسٹینس کور کیا ہے ڈیوائڈیڈ بائی ڈسٹینس کورڈ بائی سالوینٹ، اور سالوینٹ نے کتنا ڈسٹینس کور کیا ہے، تو یہ ہوتی ہے آر ایف ویلیو۔ اب سرکولر یا ریڈیل کرومیٹوگرافی
क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इसके लिए हम एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लेते हैं या फिल्टर पेपर ले लेते हैं और उसे सर्कल में काट लेते हैं। सर्कल में काटने के बाद हम इस पेपर के सेंटर में कर लेते हैं सुराख। सुराख करने के बाद फॉर एग्जांपल हम इंक को कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं तो हम इसके आसपास एक सर्कल सा बना देते हैं पेन से या मार्कर से। फिर उस जो सुराख किया था उसमें फिल्टर पेपर या टिश्यू पेपर लगा के उसे हम सॉल्वेंट के अंदर इस तरीके से हैंग कर देते हैं। तो ऊपर जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके वो इस सर्कल की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। रेडियल के केस में हम मुख्तलिफ कलर्स के स्पॉट्स लगा देते हैं या मुख्तलिफ सैंपल के स्पॉट्स लगा देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कुछ इन स्ट्रिप्स की फॉर्म में जो है वो अलग होते हैं। ये भी रेडियल क्रोमेटोग्राफी का ही एक तरीका है जिसमें हमने मुख्तलिफ सैंपल्स को डॉट डॉट से मुख्तलिफ जगह पे रखा है। और बाकी वही तरीका कि हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर को सर्कल की फॉर्म में ले लिया, उसके दरमियान में सुराख करके उसमें फिल्टर पेपर को रख के और उसे हमने सॉल्वेंट के अंदर डिप कर दिया। तो ऊपर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अलग हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आती हैं जो हमारी बुक में फार्माकोग्नोसी की बुक में क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स इस्तेमाल हुई हैं। वो तीन तरह की क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल हुई है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो डेफिनेशन सेम आएगी जो क्रोमेटोग्राफी की है कि इसमें हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग करते हैं उनकी पोलैरिटी की बुनियाद पे। अच्छा, पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी कहते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऊपर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बन जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बने हो तो वो होती है उस चीज की पोलैरिटी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के इस केस में जो स्टेशनरी फेज होती है वो फिल्टर पेपर होता है और मोबाइल फेज जो होती है वो वाटर होता है, एथेनॉल होता है या एसीटोन होता है। अब इसका ऑपरेटर्स कैसे होता है? हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए करते क्या है कि हम फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले लेते हैं, लंबी सी स्ट्रिप ले लेते हैं और उस लंबी सी स्ट्रिप को लेने के बाद हम उसके नीचे उसकी बेस पे 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे एक लाइन लगा लेते हैं जिसे हम बेस लाइन कहते हैं। उस बेस लाइन के दरमियान में हम अपना सैंपल का ड्रॉप डाल देते हैं और उसे कुछ इस तरीके से फिल्टर पेपर क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हैंग कर देते हैं, इस तरीके से कि बेस लाइन सॉल्वेंट के अंदर डिप ना करे। अच्छा, प्रोसीजर हम आगे डिटेल में मजीद देखते हैं उससे पहले जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें चार स्टाइल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। सेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, सर्कुलर और रेडियल भी हो सकता है। ये सारे तरीके मैंने आपको पहले बता दिए कि सेंडिंग में सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करता है, डिसेंडिंग में सॉल्वेंट नीचे की तरफ मूव करता है, सर्कुलर में इन सर्कल की फॉर्म में, और रेडियल में भी जो है वो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर ही मूव करता है। नेक्स्ट आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर कि इसका तरीका क्या होता है, हम इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिल्टर पेपर ले लेते हैं और उसे अकॉर्डिंग टू आवर स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी कट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी करनी है तो उस केस में हम फिल्टर पेपर की एक लंबी सी स्ट्रिप ले लेते हैं। और अगर हमने सर्कुलर या रेडियल क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है तो हम फिल्टर पेपर को राउंड फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में ले लेते हैं। तो हम चूंकि मोस्ट कॉमनली जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल होती है वो होती है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, तो हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी यहाँ देखेंगे। तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के केस में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले लेंगे और उसके बॉटम पे 2.5 या 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब वो लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं बेस लाइन। उसके बाद उस लाइन के बिल्कुल सेंटर में हम अपने सैंपल का ड्रॉप डाल देंगे। फिर हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर या किसी बीकर के अंदर ले लेंगे अपना सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, अपने वो जो हमने फिल्टर पेपर लिया था उसको उस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हैंग कर देंगे सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन इस तरह से हैंग करेंगे कि जो हमारी बेस लाइन थी वो सॉल्वेंट के अंदर डिप ना हो। फिर हम उसे थोड़ी देर के लिए साकिन रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो मोबाइल फेस होगी यानी सॉल्वेंट जो होगा वो फिल्टर पेपर में ऊपर की साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फिल्टर पेपर में मौजूद होते हैं छोटे छोटे पोर्स। तो वो पानी क्या करेगा या सॉल्वेंट क्या करेगा, मोबाइल फेस फिल्टर पेपर के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब वो फिल्टर पेपर के ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो ऊपर जब वो सैंपल तक पहुंचेगा, सैंपल से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, तो उसके साथ ही हमारे सैंपल भी डिफरेंट कलर्स में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो सैंपल सेपरेट होंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आरएफ वैल्यू निकाल लेते हैं। और आरएफ वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स वहां से कलर्स की फॉर्म में सेपरेट हुए हैं हम उसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं स्केल की मदद से। और जो सॉल्वेंट नीचे से मूव कर रहा था हम उसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं फ्रॉम बेस लाइन। तो इस तरीके से जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आरएफ वैल्यू आ जाती है।
अब फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये फिल्टर पेपर हमने स्ट्रिप की फॉर्म में ले लिया, यहाँ पे सैंपल लगा लिया 2.5 या 2 सेंटीमीटर के फासले पे, उसको हमने सॉल्वेंट के अंदर इस तरह डिप कर दिया कि हमारा सैंपल सॉल्वेंट में डिप ना हो। आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। सॉल्वेंट के मूव करने के साथ जो सैंपल के अंदर मिक्सचर था वो भी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और उसके डिफरेंट कलर्स जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। एक आपको हल्की सी व्हाइट सी लाइन मूव करती दिखाई दे रही है और एक आपको कलरफुल लाइन दिखाई दे रही है। तो ये जो कलरफुल लाइन है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस है, और जो वाइट सी लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया है। तो हम इनका डिस्टेंस मेजर करके आरएफ वैल्यू के फॉर्मूला में ऐड करके और इनकी आरएफ वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगी जो सिंपल क्रोमेटोग्राफी की और पेपर क्रोमेटोग्राफी की होती है। लेकिन यहाँ पे जो फर्क आता है वो स्टेशनरी फेज का आता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने स्टेशनरी फेज पेपर फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया था, लेकिन जो स्टेशनरी फेज होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वो हमारे पास एक ग्लास या प्लास्टिक की एक थिन सी प्लेट होती है, एक थिन सी स्लाइड सी होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं अपना एड्सॉर्बेंट की लेयर चढ़ा लेते हैं, पतली सी एड्सॉर्बेंट की लेयर चढ़ाते हैं। एड्सॉर्बेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी चीज को जस्ट करता है, पानी को, नमी वगैरह को, या किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत जो रखता है। तो हम क्या करते हैं उस ग्लास के ऊपर किसी एड्सॉर्बेंट की तह चढ़ा देते हैं। वो सिलिका भी हो सकता है, वो सेलुलोज भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है। तो जब हम उस ग्लास या उस प्लास्टिक के ऊपर सिलिका की या किसी एड्सॉर्बेंट की लेयर चढ़ा देते हैं तो वो टीएलसी प्लेट बन जाती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट बन जाती है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में किया था। बस फर्क क्या आ गया कि वहां पे स्टेशनरी फेस फिल्टर पेपर इस्तेमाल हो रही थी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट यानी ग्लास या प्लास्टिक या एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर हमने एड्सॉर्बेंट की लेयर चढ़ा दी होती है। मोबाइल फेस सेम वही होगी, वाटर, एथेनॉल या एसीटोन। प्रोसीजर इसका क्या होगा, हम टीएलसी प्लेट लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, हम उसके बॉटम पे लाइन ड्रॉ करके और उसके ऊपर बेस लाइन ड्रॉ करेंगे 2.5 या 2 सेंटीमीटर के फासले पे, और उसके सेंटर में अपना सैंपल अप्लाई कर देंगे। सैंपल अप्लाई करने के बाद हम अपना क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेंगे, उसमें मोबाइल फेस ले लेंगे, सॉल्वेंट, वाटर, अल्कोहल या एसीटोन, और इस प्लेट को मोबाइल फेस के अंदर रख देंगे। कुछ वक्त के बाद उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम फॉर्मूला के जरिए से उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तकरीबन ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह का प्रोसीजर है, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ पे हम टीएलसी प्लेट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी से टोटली डिफरेंट है, लेकिन डेफिनेशन इसमें भी वही होगी कि इसमें भी हम मुख्तलिफ मिक्सचर्स को अलग करते हैं उनकी पोलैरिटी की बुनियाद पे। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज इस्तेमाल होती है वो सिलिका जेल या एलुमिना या सेलुलोज पाउडर इस्तेमाल होता है, और जो मोबाइल फेज होती है वो सेम वही होती है जो बाकी क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो ऑपरेटर्स हमारे पास इस्तेमाल होता है वो एक कॉलम सा होता है शीशे का। इसमें क्या होता है, सबसे नीचे एक नोजल सी लगी होती है, उससे हम उसके जो आउटलेट है उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और इस ट्यूब के अंदर अब हम क्या करते हैं कि हम ट्यूब में सबसे नीचे पहले रखते हैं कॉटन। अच्छा, प्रोसीजर अगर इसका देखें तो इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, एक ये ग्लास ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल होता है हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो ऑपरेटस होता है, और उस ट्यूब की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है, और जो डायमीटर होता है वो 50 मिलीमीटर होता है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस कॉलम के सबसे नीचे पैंदे में रख देते होते हैं कॉटन। कॉटन रखने के बाद हम ऊपर रख देते हैं रेत। रेत रखने के बाद हम उसके ऊपर डाल देते हैं अपनी सिलिका जेल। सिलिका जेल डालने के बाद दोबारा से उसके ऊपर रेत डाल देते हैं। रेत डालने के बाद हम उसके ऊपर वो मॉलिक्यूल डालते हैं जिसको हमने अलग करना हो, जिसकी हमने सेपरेशन करनी हो, वो मिक्सचर डाल देते हैं। मिक्सचर डालने के बाद हम ऊपर से लास्ट पे अपना जो है मोबाइल फेस पोर करते हैं और उसे कुछ वक्त के लिए रख देते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मुख्तलिफ कलर्स के हमें बैंड्स शो होते हैं। उन बैंड्स को फिर हम नीचे यहाँ पे जो लगी होती है, नोजल सी लगी होती है, जो स्टॉप कॉक लगी होती है, इसको खोल के हम एक एक को अलग कर लेते हैं। पहले एक कलर को अलग कर लेते हैं, उस बीकर को हटा के दूसरा बीकर रख के दूसरे कलर को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी पोलैरिटी कम होती है वो पहले यहाँ से निकल जाते हैं, वो मॉलिक्यूल जिनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है वो बाद में यहाँ से निकलते हैं।
तो यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले बेस में क्वार्टर रख देंगे, क्वार्टर रखने के बाद उसके ऊपर रेत डाल देंगे, रेत डालने के बाद हम ऐड सिलिका जेल करेंगे एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पे, फिर हम उसके ऊपर दोबारा से रेत डाल देंगे, रेत डालने के बाद हम उसके ऊपर अपने उस कंपाउंड का मिक्सचर डालेंगे जिसे हमने सेपरेट करना हो, एंड एट द एंड वी पोर द मोबाइल फेस यानी जिसने मूव करना है, जिसने उन कंपोनेंट्स को अलग करना है। कुछ देर के बाद वो कंपोनेंट्स अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनके बैंड्स बन जाएंगे। जिन कंपोनेंट्स की मैक्सिमम अफिनिटी होती है मोबाइल फेस के बाद, उनको हम पहले कलेक्ट कर लेंगे, या हम कह सकते हैं जिनकी पोलैरिटी कम होती है उन्हें हम पहले नीचे से कलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक कॉलम दिया गया है, कॉलम में हम सबसे पहले नीचे रख देते हैं कॉटन, रुई। उसके बाद हम इसके ऊपर रेत डाल देते हैं, रेत डालने के बाद हम इस पे डाल देते हैं स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस के बाद हम दोबारा से रेत डालते हैं, डालने के बाद हम इस पे सैंपल डाल देते हैं जिस सैंपल को हमने अलग करना हो। अच्छा, स्टेशनरी फेस जो थी वो स्लिका जेल थी, फिर हम इसके ऊपर से मोबाइल फेस डालते हैं और इसे कुछ वक्त के लिए रख देते हैं। अब आप नोट करेंगे कि मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पे अपेयर हुए हैं, हम उसको उनकी पोलैरिटी की बेस पे अलग कर लेंगे। जिनकी पोलैरिटी कम होगी उन्हें हम नीचे से ओपनिंग से पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक बीकर के अंदर, उसके बाद जिनकी पोलैरिटी इससे ज़्यादा होगी वो फिर बाद में हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जितने कलर्स अपेयर हुए हैं उन सबको हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से उनकी पोलैरिटी की बेस पे क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।